Hello everyone, here's your maths content book, and today we are going to start our very first block, which is rational numbers. Our first block is rational numbers, and our today's lesson plan is number line. So basically today we will learn to represent rational numbers on a number line. So before starting this block or our lesson plan, I would like to explain you some basic terms which will definitely help you. So first one is natural numbers. Natural numbers are those numbers which start from 1 and up to infinity. Infinity means up to so on. The numbers which start from 1, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. All these are natural numbers. Second one is whole numbers. So whole numbers are natural numbers and 0. It means whole numbers start from 0 and natural numbers start from 1. All numbers are natural numbers except 0. And whole numbers, all the natural number plus 0. Whole numbers start from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and up to infinity. All these are whole numbers. Third term is integers. Integers are whole numbers and negative numbers. It means we can represent integers on a number line. So integers consist negative numbers and positive numbers, and also we can say that positive integers or negative integers. So whole numbers and negative numbers consist integers. All the whole numbers from 0 to infinity, all these are integers, plus negative numbers, the numbers that are having minus sign with them, like -1, -2, -3, -4, -5. These all are negative numbers and these are integers. I've written here that it means all positive and negative numbers that can be represented on a number line, all are integers. Here you can see that this one is our number line 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right side of 0, the numbers that are lying to right side of 0 and with 0 are whole numbers, and the numbers that are lying to the left side of 0, 0 के left side में जो है -1, -2, -3, all these are negative numbers, and these complete are integers. Now come to our main definition, that is rational numbers. So rational numbers are those numbers that are expressed in form of p by q. जितने भी नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p by q इट मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म, जितने भी नंबर्स जिनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स. एंड कंडीशन फॉर दिस थिंग इज दैट p एंड q आर इंटीजर्स. कि जो p और q है ये क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड q will not be equal to 0. These are the two conditions for being rational number, that p and q must be integers and q will not equal to 0. For example, I have written 1.4. 1.4. So 1.4 I can write this as like 14 by 10. So this one is in the form of p by q, 14. It is an integer, positive integer. 10 is also an integer and q is not equal to 0. यहाँ पर हमारा 0 नहीं है, 10 नंबर है. So both conditions are fulfilling and p by q की फॉर्म में है. So this means 1.4 is rational number. We can say that. Next one is 6 by 5. Again in the form of p by q and both are integers and q is not equal to 0. So this one is also रेशनल नंबर. 20%. परसेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 by 100. परसेंट 1 by 100 होता है ना. सो 20 by 100. दिस वन इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p by q. Both p and q are our integers and q is not equal to 0. So this one is also rational number. 2 1 by 2. This is a mixed fraction, and if I write this as an, so it will be 5 by 2. Again in the form of p by q. Both are integers and q is not equal to 0. So this one is also rational number. So basically we can say that any number, whether it is in the form of percentage or in the form of decimal or in the form of fraction,
This one is in the form of decimal, this one is in the form of fraction, this one is in the form of percentage. So different type है. कोई भी नंबर डेसिमल हो, चाहे परसेंट हो या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, इट इज अ रैशनल नंबर इफ ओनली इफ वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. अगर हम उस नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट मीन्स इट इज डेफिनेटली अ रैशनल नंबर. एंड कंडीशन, as I told you, that p and q must be integers and q will not be equal to 0. Now come to our next point. As I said कि जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर्स को. सो ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स. फ्रॉम दिस वी कैन से दैट ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर्स. जितने भी फ्रैक्शंस होते हैं हमारे सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं. बट द कंडीशन इज दैट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस. Here you have to notice the thing that all fractions are rational numbers, but all rational numbers are not fractions. And the reason is that because rational numbers can be positive as well as negative. As I told you कि रेशनल नंबर्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि उसमें पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स, और इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. बट फ्रैक्शन कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव. फ्रैक्शन तो हमारे नेगेटिव नहीं होते ना. सो दैट्स वाई ऑल फ्रैक्शन कैन बी रैशनल नंबर्स, बट रैशनल नंबर्स सारे फ्रैक्शन नहीं हो सकते. सपोज -3/5, -3/5 फ्रैक्शन लग रहा है ये हमें, एंड ऑल्सो 3/5 is in the form of p by q. This one is in the form of p by q and q is not equal to 0. So हम कह सकते हैं that this one is rational number, but this one is not a fraction because यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का साइन है. So that's why it is only rational number, it is not a fraction. Okay, hope you get it. So before representing the fraction or the numbers on number line, we have to go through the three types of fraction, and these are proper fraction, improper fraction and mixed fraction. Let me first explain proper fraction. So proper fractions are those lie between 0 and 1. Those fractions lie between 0 and 1 on a number line. वो फ्रैक्शन जिनको हम 0 और 1 के बीच में सेगमेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, दोज आर प्रॉपर फ्रैक्शन. एंड द मोस्ट significant thing for getting proper fraction is that in proper fraction numerator, that is upper part of a fraction, किसी भी fraction का जो upper part होता है we call it numerator and the lower part we call it denominator. So in proper fraction denominator will always be greater than numerator. न्यूमिनेटर जो है वो स्मॉल मिलेगा आपको एंड डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी ग्रेटर. यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल 6/9. this 9 denominator is greater than this 6 numerator. 6 is numerator and 9 is denominator. So you can see that 9 is greater than 6. It means our denominator is greater. So for proper fraction denominator will always be greater. Also in 2/5 denominator is greater than numerator. 1/3 denominator is greater than numerator. So this one is our proper fraction, and proper fractions are always represented between 0 and 1 on a number line. 0 और 1 के बीच में ही आप represent कर सकते हो proper fraction को. Second one is improper fractions. Improper fractions के लिए those lie between the value greater than 1. It means इनको आप 1 से ज़्यादा के 1 के बाद आप रिप्रेजेंट करोगे. इनकी वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1. एंड फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर. इट मीन्स अपोजिट ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर ग्रेटर था, बट इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यू विल फाइंड न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. फॉर एग्जाम्पल 10/6 न्यूमरेटर and 6 is denominator, so 10 is greater than 6. It means our numerator is greater than our denominator. 7/5 7 is greater than 5. 3/2 3 is greater than 2. And same condition is for mixed fraction, because improper fraction जो होते हैं नंबर लाइन पर हम उनको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स वाई फॉर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड फॉर मिक्स्ड फ्रैक्शन कंडीशन इज सेम, दैट दे आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन आफ्टर 1 के बाद ही आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन को 0 और 1 के बीच में.
I have written an example for you. 16/5. This one is improper fraction. और इसकी mixed form क्या होगी? To find out the mixed form, किसी भी fraction का mixed form find out करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? We use division method. So I have divided 16/5 and I got 5 3s are 15 and remainder is 1. So to change any fraction into mixed fraction, what we do? We put the divisor here and our remainder on upper side and this quotient on this left side. So this one is our mixed fraction. Now the thing is that how to represent any proper fraction or any mixed fraction or improper fraction on a number line. So to represent any fraction on a number line, conditions are applied. First we will go through the conditions for proper fraction. For proper fraction, if any fraction is proper, like 2/5, this is proper fraction because denominator greater and numerator small है. So for this what we will do? We will divide the section between 0 and 1. As I told you कि proper fraction के लिए fractions को हम कहाँ show करते हैं? 0 and 1 के बीच में. Okay, so thing is that कि 0 और 1 के बीच में हमें divide करना है. But कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? हाउ विल यू कम टू नो? सो यू विल कम टू नो विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर. जो भी आपका डिनोमिनेटर गिवन है यू विल डिवाइड इट इनटू द पार्ट्स. लाइक आवर डिनोमिनेटर इज 5, सो इट मीन्स फॉर दिस फ्रैक्शन वी विल डिवाइड द सेगमेंट्स इनटू 5 सेगमेंट्स वी विल ड्रॉ. लाइक 0 से 1 के बीच में करेंगे. सो 0. Now I have to make 5 segments because my denominator is 5 और जितना हमारा डिनोमिनेटर है उतने ही इक्वल पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे? सेक्शंस डिवाइड करेंगे. सो आवर डिनोमिनेटर इज 5, तो 5 सेक्शन डिवाइड करते हैं. लेट्स डू इट. 1 2 3 4 and 5. 1 फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 सेक्शंस वी गॉट 0 और 1 के बीच में. ठीक है, अब ये तो हो गया सेगमेंट्स का डिवीजन. नाउ आप इस 2/5 को रिप्रेजेंट कहाँ करोगे? सो 0 के बाद 1/5, इसका फर्स्ट पार्ट लेंगे. 2/5, 3/5, काउंटिंग करेंगे हम लोग. 4/5, हमने 5 पार्ट्स लिए ना, और यहाँ पे मैंने 1 लिखा है क्योंकि आफ्टर 4/5 देखो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5. 4/5 के बाद क्या आता है? 5/5, और 5/5 क्या है? कट जाएगा 1. सो दैट्स वाई नो नीड टू राइट 5/5. दैट्स वाई आई रोट 1. सो यू कैन राइट 1 हियर. ओके, नाउ ये हमारा सेगमेंट्स का डिवीजन हो चुका है. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट 2/5. सो ये हमारा 2/5 है. वी कैन रिप्रेजेंट इट हियर. अनदर एग्जाम्पल इज 1/3. व्हाट इज आवर डिनोमिनेटर? 3. इट मीन्स आप कितने सेगमेंट्स बनाओगे? 3. We will make 3 segments on a number line and starting कहाँ से होगी? 0 से. 0, 1 segment, 2 segment, 3 segment. 1 2 3 हो गया 3 segments. So 1/3, 2/3 and as I told you 1 मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि 2/3 के बाद क्या आएगा? 3/3 जो 1 होता है. ओके, now 1/3 ये हो गया रिप्रेजेंट. Got it? Now another one is 0/6. 0/6. So denominator is 6. It means you will divide the sections on number line into 6 parts. 0 से start करते हैं. 1 2 3 4 5 6. First segment, second, third, fourth, fifth, 6. 6 segments हो गए. यहाँ पे मैंने लिख दिया 1. So 0/6 0 है. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Now tell me whenever 0 is divided by any number, जब भी 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो, रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0. 0 इज डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 0 को. सो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? 0. इट मीन्स 0/6 इक्वल्स टू 0. तो अब इस नंबर लाइन में 0/6 को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? 0 पर. इट मीन्स हियर. ओके, नाउ
ये तो था प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप सेगमेंट्स डिवाइड करते हो 0 से 1 के बीच में, बिटवीन 0 to 1, और आप सेगमेंट्स कितने डिवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू योर डिनोमिनेटर। जितने भी आपके डिनोमिनेटर है उतने आपको सेगमेंट्स डिवाइड करने हैं। 5 डिनोमिनेटर है, इट मीन्स यू विल ड्रॉ 5 सेगमेंट्स। 3 डिनोमिनेटर है, यू विल ड्रॉ 3 सेगमेंट्स। 6 डिनोमिनेटर है, सो 6 पार्ट ड्रॉ करोगे। 7 है, सो 7, 9 है, 9। ओके, एंड आफ्टर डिवीजन ऑफ सेगमेंट्स आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से, कि लाइक जो डिनोमिनेटर है वो तो एज इट इज रहेगा, उसके फर्स्ट पार्ट से, यानी 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। ओके, ऐसे ही 1/3, 2/3। अगर यहाँ होता कि 7/5, सो आपके सेगमेंट्स होते 5 और आप स्टार्ट करते 1/5, 2/3, 3/5, 4/5, 6/5, 7/5, इस तरीके से। ओके, and then you can easily represent on number line. Now our second fraction is mixed fraction or improper fraction. So at first, as I told you कि improper fraction को आप ऐसे represent नहीं कर सकते number line पर. It will be represented in the form of mixed fraction. Improper fraction को आपको पहले किस में change करना होगा? Mixed fraction में. As I written that an improper fraction needs to be converted to a mixed fraction. पहले आपको improper fraction को mixed fraction में convert करना होगा. Only then you will be able to represent it on a number line. And in this, how will you divide the sections? We will divide the section between whole number part. Whole number part means between 0 and the next number into the same number. और जो mixed fraction में number आएगा उससे next number. एग्जाम्पल करते हैं 10/6. दिस वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 10/6 इज इम्प्रॉपर बिकॉज न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. सो व्हाट विल डू? वी विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए इजी पार्ट बताया था दैट यू हैव टू यूज द डिवीजन मेथड. सो 6 1s are 6, रिमाइंडर इज 4. सो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? ये जो आपका क्वेश्चन है इस साइड आ जाएगा, रिमाइंडर upper side and divisor नीचे की side. Okay, so for 10/6 mixed fraction is 1/4/6. This one is the mixed fraction. Now the thing is that how will you represent 1/4/6 on a number line? 1/4/6 improper fraction को आपने mix में change किया. Now we will represent it on a number line. Number line के लिए you have to divide the section between whole number part. It means 0 से स्टार्ट करेंगे. एंड नाउ यू कैन सी दैट आवर डिनोमिनेटर इज 6. यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर है 6. सो इट मीन्स मुझे कितने सेक्शंस डिवाइड करने हैं? 6. सो लेट मी डिवाइड 6 सेक्शंस. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस हो गए मेरे. सेकेंड थिंग इज दैट प्रॉपर में तो हम 0 और 1 के बीच में सेगमेंट्स डिवाइड करते थे. यहाँ पर 0 और नेक्स्ट नंबर इनटू द सेम नंबर. इट मीन्स ये जो आपका यहाँ जो नंबर है इससे नेक्स्ट नंबर 1 है. सो व्हाट नंबर इज नेक्स्ट टू 1? 2. यानी इससे नेक्स्ट 2. नेक्स्ट इससे क्यों लिया हमने? बिकॉज दिस होल पार्ट 1 तो हम ऑलरेडी यहाँ ले ही रहे हैं. सो 1 के नेक्स्ट वाला पार्ट ही लेंगे, दैट्स वाई 2. नाउ अब आप यहाँ पे लिखोगे 1/6, 1 2/6, 1 3/6, 1 4/6 एंड 1 5/6 और 2 तो यहाँ है ही. सो नाउ 1 4/6 यहाँ रिप्रेजेंट होगा. ओके, और एग्जाम्पल करते हैं 7/5. 7/5 इज अगेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज इसमें भी न्यूमिनेटर क्या है? ग्रेटर है. सो इसको भी हम मिक्स में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करते हैं मिक्स में. 5 1s are 5. ओके, दिस पार्ट ये यहाँ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर जाएगा एंड डिवाइजर नीचे. अब ये इसका मिक्स फ्रैक्शन बन चुका है. नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन. 0 से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज आवर डिनोमिनेटर? 5. सो इट मीन्स हम इसको कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे? 5 डिनोमिनेटर है तो 5 सेगमेंट्स में. 1 2 3 4 5 हो गए 5 सेगमेंट्स. अब यहाँ जो नंबर होता है उससे नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं. सो 1 है, 1 का नेक्स्ट क्या आएगा?
2, तो यहाँ पे मतलब हमारे सेगमेंट्स हैं वो किसके बीच में रिप्रेजेंट होंगे, 0 और 2 के बीच में। 1 1/5, 1 2/5, 1 3/5, 1 4/5। यहाँ हम नेक्स्ट नंबर इसलिए ले रहे हैं बिकॉज यहाँ हम अपना होल पार्ट ले रहे हैं, 1 हमने यहाँ ले लिया है, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग नेक्स्ट पार्ट। सो नाउ 1 2/5 आप कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, 1 2/5 हमारा यहाँ रिप्रेजेंट होगा। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, 16/5। 16/5 अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो या प्रॉपर फ्रैक्शन को, बिकॉज प्रॉपर फ्रैक्शन तो डायरेक्टली डिनोमिनेटर से सेगमेंट्स डिवाइड होके 0 और 1 के बीच में सेगमेंट डिवाइड होते हैं एंड दैट्स इट, वी कैन रिप्रेजेंट इट। बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। आफ्टर दैट आप सेगमेंट्स को डिवाइड करते हो वही सेम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग, बट इसमें आप सेगमेंट्स डिवाइड करोगे जो यहाँ नंबर होता है उससे नेक्स्ट नंबर। लाइक 16/5, इफ आई रिप्रेजेंट 16/5, मैं इसको चेंज करती हूँ मिक्स्ड में। दिस वन इज द मिक्स्ड फॉर्म फॉर 16/5। अब मैं इसको रिप्रेजेंट करती हूँ, 0 से स्टार्ट करती हूँ मैं। ओके, नाउ 5 मेरा डिनोमिनेटर है, सो हाउ मेनी सेगमेंट्स आई नीड टू ड्रॉ, 5। 1 2 3 4 5, 5 सेगमेंट्स ड्रॉ गए। नाउ मैंने बोला था कि इस नंबर का नेक्स्ट नंबर हम लोग यहाँ लिखते हैं, तो 3 है, 3 का नेक्स्ट क्या आएगा, 4, क्योंकि 3 होल पार्ट्स तो हम ऑलरेडी ले रहे हैं, सो वी नीड टू टेक द नेक्स्ट नंबर। नाउ 3 एज इट इज, 1/5, 3 2/5, 3 3/5, 3 4/5, तो 3 1/5 कहाँ रिप्रेजेंट होगा, यहाँ। ओके, we have represented improper fraction, that is our mixed also, and proper fraction on number line. Now I'm going to represent negative fraction, जो आपका नेगेटिव है, रेशनल नंबर्स जो नेगेटिव है उनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सेम है, बस यू हैव टू रिप्रेजेंट दीज ऑन द लेफ्ट साइड, सेम एज इट इज लाइक प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर की तरह ही ये भी रिप्रेजेंट होंगे, बट इसमें क्या चेंजमेंट है कि ये आपके लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट होंगे, बिकॉज एज आई टोल्ड दैट ऑन अ नंबर लाइन जो नेगेटिव इंटीजर्स वो कहाँ लाई करते हैं, ऑन द लेफ्ट साइड। सो दैट्स वाई आप जो ये नेगेटिव रेशनल नंबर है इसको कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, लेफ्ट साइड, इट मीन्स 0 के लेफ्ट साइड में। 3/5 -3/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो नो नीड टू चेंज इट इनटू मिक्स, इसको मिक्स में करने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर है क्योंकि मेरा न्यूमिनेटर जो है वो क्या है, स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर, सो मेरा ऑलरेडी प्रॉपर है, इसको मिक्स में करने की ज़रूरत नहीं है। सो डायरेक्टली मैं सेगमेंट्स डिवाइड कर सकती हूँ, यहाँ 0 आएगा बिकॉज नेगेटिव जो है वो किस साइड रिप्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन, 0 के लेफ्ट साइड में। 5 is my denominator, so let me divide it into 5 segments, 1 2 3 4 5 segments हो गए, एंड प्रॉपर फ्रैक्शन है, सो 0 और 1 के बीच में सेगमेंट्स डिवाइड होंगे, बट -1 बिकॉज इस बार हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट करें, दैट्स वाई 0 एंड -1। अगर ये पॉजिटिव होता तो 0 और 1 होता, सो मेक श्योर कि आप साइन प्रॉपर ध्यान रखें। सो -3/5 है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। इस टाइम मैंने सारे नेगेटिव लिए क्योंकि हम नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, सो कहाँ आएगा -3/5, ये रहा -3/5। ओके, नाउ -9/4, -9/4 इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल चेंज इट इनटू मिक्स एंड इसका मिक्स फ्रैक्शन आएगा -2 1/4। सो आप चेंज कर सकते हो, 0 4 है यहाँ, सो इट मीन्स 4 सेगमेंट्स यू नीड टू डिवाइड, 1 2 3 4। अब यहाँ पे नंबर क्या है, -2, और -2 के यहाँ क्या आता है, -3, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, मिक्स्ड वाला है, सो मिक्स्ड में हम इसे नेक्स्ट लेंगे, -3। So -2 1/4, -2 2/4, -2 3/4, and -2 1/4 is, हमें यही रिप्रेजेंट करना था, ये यहाँ हो चुका है। ओके,
So this was the representation of mixed fraction, negative rational numbers and improper fraction on a number line. Now one more thing is that rational numbers can also be represented as decimals. स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि रेशनल नंबर्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, परसेंट की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में और डेसिमल की फॉर्म में. सो द थिंग इज दैट कि आप डेसिमल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे रेशनल नंबर्स को. 19/2 एग्जाम्पल, 19/2 इज अ रैशनल नंबर, p/q की फॉर्म में. सो इसको डेसिमल्स में कैसे करेंगे? फॉर दिस वी विल यूज डिवीजन मैथड. आप डिवीजन मैथड यूज करोगे एंड आप तब तक डिवाइड करते रहोगे तब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल 19/2 है, सो 2 9s 18, 1 लेफ्ट. अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरा रिमाइंडर है 1 बट मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए. सो व्हाट आई हैव टू डू, यहाँ पे मैं एक डेसिमल पुट करूँगी और यहाँ पर एक 0 लाइक दिस. ओके, अब मैंने यहाँ 0 पुट किया है. सो 0 जब भी हम पुट करते हैं तो उसका मतलब यहाँ हमारा क्या आएगा, डेसिमल आएगा. नाउ 2 5s 10, आवर रिमाइंडर इज 0. इट मीन्स 19/2 की डेसिमल फॉर्म क्या है, 9/5. ओके, एक और कर लेते हैं. 37/4 इट्स ऑल्सो अ रैशनल नंबर एंड आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. सो आई विल डिवाइड 4/37 and I will continuously dividing it till I get the remainder 0. So 4 9s 36. Again I got 1, but what I have to need, I need 0. So what will I do, I'll put a 0 here and I'll put a decimal here. Okay, so now 10, 4 2s 8. अभी भी मुझे रिमाइंडर 0 नहीं मिला. सो एज आई टोल्ड यू, आप कंटिन्यूसली डिवाइड करोगे जब तक आपको 0 नहीं मिलता है. सो अगेन आई विल मेक अ 0 हियर. अब आपको फिर से यहाँ डेसिमल पुट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो आपने डेसिमल पुट किया इसका मतलब ये है कि अब आप 0 पुट करके आप अपना रिमाइंडर ला रहे हो. ओके, सो 4 5s 20. नाउ आई गॉट माई रिमाइंडर 0. सो इट मीन्स 37/4 का डेसिमल फॉर्म क्या है, 9/25. I hope you get the topic. So here is your S1. You will define these terms: natural number, whole number, integers and rational number. You can take help from the notes also. Draw a number line. आप ये जितने भी रेशनल नंबर्स हैं इनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे. मैंने सारे सिखा दिए आपको, प्रॉपर वाले भी, इम्प्रॉपर वाले भी, एज वेल एज नेगेटिव भी, 0 वाले भी. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 25/16 एज ए डेसिमल. जो भी हमने रिसेंटली किया है, डेसिमल की फॉर्म में आपको इसको करना है. सो क्या करोगे आप, 16/25 इसको डिवीजन मेथड से आप करोगे. ओके, एंड वन थिंग आई मस्ट सजेस्ट यू दैट बिफोर स्टार्टिंग योर S1 you must have to read this content. This one is your content book and you have to read these things so that you can easily get the topic. Okay, thank you.